سے لے کر 16ویں آیت تک ہم پڑھیں گے اور پھر غور کریں گے۔ جی پلیز پڑھو۔ مبارک ہے وہ شخص جو آزمائشوں کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنی محبت کرنے والے سے وعدہ کیا ہے۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہش میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ اور میرے بیٹے، اے میرے پیارے بھائیوں، فریب نہ کھانا۔ آمین۔ سوری، ادھر کی ہاں ایک اور پڑھ لیں، 17ویں آیت۔ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ ہاللویہ۔ بڑا خوبصورت ہے، ہاں جی بہت خوبصورت کلام کا یہ حصہ جو بھائی سیمسن جی نے پڑھا ہے۔ ہم سب غور کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس پہ کہ یہ حوالہ جو ہے یہ امتحان اور آزمائش کے بارے میں ہے، جس میں سے ہم سبھی گزرتے ہیں۔ آزمائش اور امتحان جس میں سے ہم سبھی گزرتے ہیں، اور لکھا ہے کہ جو برداشت کرتا ہے اس کی امتحان کی، وہ کیا بات ہے، وہ مقبول ٹھہرا اور زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جسے خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ مجھے یاد آ رہی ایک سٹوری تھی، ابو بن آدم، آپ نے سنا ہوا نام؟ ایک سٹوری تھی، ہم لوگ جب ہاں جو وڈیرے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے۔ جی، تو یہ ایک سٹوری تھی ابو بن آدم جو کہ ایک بڑا خدمت گزار آدمی تھا، ایماندار آدمی تھا، اور ابو بن آدم نے ایک خواب دیکھا۔ اور خواب کیا دیکھتا ہے کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور اس میں اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے۔ تو ابو بن آدم اس فرشتے سے پوچھتا ہے کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اس میں کیا لکھ رہا ہے؟ تو کہتا ہے کہ اس میں نام لکھ رہا ہوں ان لوگوں کے جو خدا سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میرا بھی کوئی نام ہے اس میں بھی خدا سے محبت کرتا ہوں، تو میرا بھی نام ہے اس میں۔ تو فرشتے نے کہا، دیکھا ساری بک چھانی اور پھر اس کا نام نہیں نکلا۔ تو پھر وہ بڑا مایوس سا ہو گیا کہ میرا نام ہی نہیں اس کتاب میں۔ پھر ایک دفعہ پھر اس نے خواب دیکھی، اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں فرشتہ ہے آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ بھئی تیرے ہاتھ میں یہ کیا؟ اس نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں میں ان لوگوں کے نام لکھتا ہوں جو لوگوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا اس میں کیا میرا نام ہے؟ تو فرشتے نے کتاب دیکھی تو بولا کہ تیرا سب سے اوپر ہے نام، اس بک میں تیرا نام سب سے اوپر ہے، جو خدا کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو ابو بن آدم ایک ایسا آدمی تھا جو اس کے لوگوں سے محبت کرتا تھا، جو خدا کے لوگوں کی خدمت کرتا تھا، جو اس کے لوگوں سے پیار کرتا تھا۔ اب یہ جو بیان کرنے کا میرا مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کا تعلق کسی آزمائش سے ہے۔ اس
حوالے کا تعلق، اس سٹوری کا تعلق اس حوالے سے نہیں ہے. ابھی آپ پھر کہیں گے کہ بھی آپ نے کیوں یہ شیئر کی ہے نا. میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ میں نے اس لیے شیئر کی کہ ہم جو اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم خدا کو نہیں جانتے، لیکن اقرار کرتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، ہے نا. اور خدا سے محبت رکھنا، اس کا مطلب ہے ہوا میں تیر چلانا. میں اتنے مار دی، میں نے اتنے مار دی، یعنی ہم لوگ جو ہے ہوا میں تیر چھوڑ رہے ہیں اور کلیم کر رہے ہیں کہ میں نے اتنے شکار کر لی ہیں، اور شکار آئے کو نہیں، ہے نا. لیکن جب ہم انسانوں کی محبت کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہم ایک دنیاوی سطح پر سوچتے ہیں. خدا سے محبت کرنا آسمانوں کی بات نہیں، یعنی ہمارا یہ ایمان ہے تو خدا بلندیوں پہ رہتا ہے، وہ اوپر رہتا ہے، یعنی ہماری ریچ سے پرے ہے. ہم اس تک ریچ نہیں کر سکتے کہ ہم جا کے خدا سے ملیں اور خداوند سے محبت کا اظہار کریں، لیکن ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم خدا سے پیار کرتے ہیں، ہے نا. ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم خدا سے ڈرتے بھی ہیں اور اس سے محبت بھی کرتے ہیں. تو آج کی یہ جو ہماری تلاوت ہے جو بھائی سیمسن نے کی، اس کا تعلق ایسا ہے کہ جو ہم ڈیزائر کرتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے. ہماری خواہش کیا ہے؟ اور جب ہم اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، کہ میرے دل میں ایک خواہش آئی کہ میں امیر آدمی بنوں، میں بڑا لینڈ لارڈ بن جاؤں، میرا بزنس ہو، مجھے اچھی بیوی ملے، میرے بال بچے ہوں. کیا یہ میری ضرورتیں ہیں یا میری خواہش ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے یہ خواہش کی کہ مجھے اچھی بیوی ملے، میرا اچھا کاروبار ہو، میرے پاس مال و دولت ہو، میرے نوکر چاکر ہوں، میں ایک ویل نون پرسن بن جاؤں، مشہور آدمی بن جاؤں، میں بہت زیادہ پڑھ لکھ لوں؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم خواہش کرتے ہیں. اور خواہش کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم خواہش ہی کریں اور پھر اس پر عمل نہ کریں تو کیا ہماری خواہش پوری ہوگی؟ ہاں، ہماری خواہش پوری نہیں ہوگی. لیکن کیا ہم نے کبھی یہ جانا کہ ہماری ضرورت کیا ہے اور ہماری خواہش کیا ہے؟ خواہش میں اور ضرورت میں فرق ہے. خواہش میں اور ضرورت میں فرق ہے. ضرورت وہ ہے جس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا، ہے نا. ضرورت وہ ہے کہ جس کے بغیر میرا گزارا ہو نہیں سکتا. جیسے اگر مجھے زندہ رہنا ہے تو مجھے سانس کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ میری خواہش ہے کہ مجھے سانس آتی رہے، یہ خواہش ہے کہ میری ہمیشہ ہی سانس چلتی رہے، لیکن جو ضرورت ہے وہ زندہ رہنا ہے. زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت ہے. اگر میں انسان ہوں تو اس معاشرے میں رہنے کے لیے مجھے کپڑے درکار ہیں. یعنی ایسے بھی ہیں جو بغیر کپڑوں کے چلتے پھرتے رہتے ہیں، ان کی کیا ہے؟ سینس نہیں ہے، ہے نا. وہ سینس کے بغیر کہ بھی کوئی بات نہیں، میں کپڑوں کے بغیر بھی چلتا پھرتا ہوں. جب میری سینس ہی نہیں ہے، مجھے دین دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر میں کپڑوں کے بغیر رہوں یا کپڑوں کے ساتھ رہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی انسان کو اگر عقل سمجھ نہیں ہے، دین دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، بس اپنی دھن میں مگن، اس کو پھر آف کورس کوئی شرم کوئی حیا نہیں رہ جاتی. یعنی اس کی سوچ نہیں ہے کہ میرے آس پاس میں کیا ہو رہا ہے، یعنی وہ سینس لیس پرسن بن گیا. تو اس کی خواہش نہیں ہے کہ میرے قبر ہو، اس کو
ख्वाहिश नहीं है कि भी मैं कब्र में हूं, उसको शर्मिंदगी का भी एहसास नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोग भी होते हैं, शायद आप में से कभी किसी ने देखा हो, मुझे तजर्बा हुआ कि मैंने पागल लोग जिसको कोई पता ही नहीं है, तो वो नंगे घूम रहे हैं और लोग उसका माइंड भी नहीं करते, बल्कि रहम करते हैं, मदद करते हैं। उसको कहते हैं साईं लोग, या मतलब ये दिमाग खराब हो गया होगा, उसको कहा जाता है इसका दिमाग फेल हो गया, काम नहीं करता, और लोग उस पर रहम करते हैं, तरस खाते हैं, खाना दे देते हैं। और कोई ऐसी बात जो ऑफ कोर्स अगर कोई उसके साथ ज्यादती करे भी तो दूसरे जो है वो एतराज करते हैं कि क्यों तंग कर रहा है, तो उसको तो होश नहीं है। तो घूमना फिरना नंगे, अगर इंसान के पास अकल या होश नहीं है तो फिर वो जैसी भी हालत में हो उसको कोई परवाह नहीं है, उसको कपड़े पहनना जरूरत नहीं है क्योंकि उसको अकल समझ नहीं है। लेकिन जो लोग थोड़ी समझ अकल रखते हैं उनको ये जरूरत महसूस होती है कि वो अपने अज़ा को ढांपें और मौसम के मुताबिक ढांपें। जैसे अभी गर्मी है, भाई ने हाफ स्लीव, आप सब ने हाफ स्लीव पहनी, तो अभी गर्मी का मौसम है, हम लोग हाफ स्लीव पहनते हैं कि गर्मी ज्यादा महसूस ना हो। हमारे पाकिस्तान में है लोग टी शर्ट भी पहनते हैं और अक्सरियत जो है वो शलवार कमीज पहनती है। तो मोस्टली गर्मियों में भी हम लोग पूरी बाजुओं की शलवार कमीज पहनते हैं। अब जो हमारी ख्वाहिश है और जो हमारी ज़रूरत है उसमें फ़र्क ये है कि अगर हमारी ज़रूरत के मुताबिक हम एक्टिव हों तो मेरा ख्याल है कि हम गुनाह नहीं करते। क्यों? क्योंकि ज़रूरत तो होती है थोड़ी सी, जो मेरी सांस चल रही है उसमें भी खुदा ने जो मेरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए सिस्टम बना दिए, मैंने सांस ही लेनी है, उसमें मेरी कोई लागत नहीं है। हाँ, अगर मैं बीमार हो जाऊं और ऐसी हालत में आ जाऊं कि वेंटिलेटर पे जाना पड़े तो वो खर्चा होगा, है ना। ये एक ज़रूरत नहीं बल्कि ख्वाहिश होगी मेरे लवाकीन की कि वो मुझे ज़िंदा रखें, जबकि मैं डिज़र्व नहीं करता। मेरे जो फंक्शन है वो इतना काम नहीं कर रहे कि मेरे अंदर सांस चली जाए। अब जो मेरे लवाकीन हैं वो ये चाह रहे हैं, उनकी एक ख्वाहिश है कि ये बंदा मार ना जाए। हमने कभी देखा है ऐसा कि जो लवाकीन होते हैं, बंदा कौमे में चले गया और फिर लोगों ने उसकी हेल्प के लिए कि भी इसको जिंदा रखा है, वो मार ना जाए, यार उसको जिंदा रखने के लिए वेंटिलेटर यानी मशीन का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल लाइफ। बाद का दो कौमे से बाहर आ जाते हैं और फिर नॉर्मल सांस चलना शुरू कर देते हैं। बाद का लोग जो है सरवाइव नहीं कर पाते, वेंटिलेटर पे भी गए, फिर 2, 4, 5 दिन 10 दिन के बाद खत्म। यानी वो आर्टिफिशियल जो ख्वाहिश थी हमारी या लवाकीन की वो खत्म हो गई, पैसे भी लग गए और बंदा भी चला गया। यानी ये ख्वाहिश में और ज़रूरत में फ़र्क ये है कि हमारी जो ज़रूरत है अगर हम उसी पे रहें तो फिर हम गुनाह नहीं करते, बल्कि खुदा ने ये वादा किया कि मैं ज़रूरतों को पूरा करूँगा। कल की फिक्र ना करो, कल के लिए खुदा, कल के लिए, कल जो आने वाला है वो अपनी फिक्र आप कर लेगा। हम आज ही के दुख में से गुजरें तो वो ही काफ़ी है, आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है, लिखा है ये मत्ती की अंजील में। तो मेरे अजीजों, जो हमारी ख्वाहिश है वो हमें परेशान करती है। लिखा है मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। अब आजमाइश, हम सब आजमाइश में से गुजरते हैं, और ना सिर्फ हम जो आज के दिन हैं, जो इस दुनिया में आज के दिन इंसान हैं, ना सिर्फ वो ही बल्कि हमसे पहले लोग भी
आजमाइशों में से गुजरे। आजमाइश ऑफ कोर्स हमें पता नहीं है कि कैसे आजमाइश आती है, कौन आजमाता है, कौन आजमाता है? पता है हमें कौन आजमाता है? हमारी ख्वाहिश हमें आजमाती है। अब अगर एक कलाम मुकद्दस में हवाला देखा जाए तो देखते हैं कि वो आदमी, उसकी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं अमीर आदमी बनूं। ये नहीं लिखा हुआ कि उसकी ख्वाहिश थी कि वो अमीर आदमी बने, लेकिन लिखा हुआ है कि वो अमीर शख्स था। कौन? कौन? अयूब। जॉब, इंग्लिश में हम उसे जॉब के नाम से जानते हैं। तो उसकी ये ख्वाहिश नहीं थी कि वो अमीर आदमी बने, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश, जो उसकी डिमांड थी, वो उसकी जो ख्वाहिश थी वो ये नहीं थी कि वो अमीर आदमी बने, लेकिन उसकी आजमाइश हुई। कैसे? कि वो अमीर आदमी था, वो खुदावंद का बड़ा चुना हुआ भी था और खुदावंद की खिदमत गुजारी भी करता था, खुदावंद के आगे झुकता था, नजर की सोखनी कुर्बानियां ये सब वो करता था, बड़ा रासबाज आदमी था। अब किसने उसे आजमाया? शैतान। यानी वो काम जो खुदा को नापसंद है वो शैतान ने उसके लिए किए। क्या? हाँ, क्या 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 काम किए? उसकी बीवी, उसका सब कुछ, उसका माल वगैरह जो जानवर थे सब, बीमारी, उसके अलावा उसके जिस्म में जो है ना जख्म हो गए थे, हाँ, जो जर्जियत नाम की ये जो थी आजमाइश आई कि जो कुछ उसके पास था वो खत्म खत्म हो गया, सब कुछ माल दौलत है ना। खत्म हो गया। ये है आजमाइश कि जो कुछ भी उसके पास था, अमीर आदमी फकीरी में आ गया, है ना। ये टाइम शुरू हो रहा है कि जब हमारे पास बहुत हो तो हम उसमें एंजॉय करें, बल्ले बल्ले, वाह जी वाह, वाह जी वाह, है ना, एंजॉय करें। लेकिन जब दुख का वक्त आए, ये है आजमाइश। और कौन आजमाया गया? हमारे कलाम मुकद्दस में एक और भी है हवाला नए ऐतनामे में, कौन आजमाया गया? किसी का याद है कौन आजमाया गया? कोई नहीं याद ना? है याद कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह आजमाए गए सन। हाँ, देखो कलाम में पढ़िया करो। यीशु मसीह की आजमाइश हुई कैसे? रोजों के दिनों में हम देखते हैं कि यीशु ने फाका किया और उसको क्या हुई? भूख लगी। और फिर किसने आजमाया? शैतान ने। पास आ गया, भाई फड़ो पत्थर नु कहो रोटी बन जाए, खुदा जे तुसी, हाँ तुसी खुदा दे बेटे जे, तुसी लिखिया है कि भी तुसी कहोगे तो हो जाएगा पूरा। उन्होंने कहा कि भी नहीं, ये नाल ही नहीं सिर्फ गल बनती, हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, जो उसका कलाम है, इंसान उससे जीता रहेगा। हम जो इंसान हैं आजमाइश का मुकाबला नहीं कर पाते। एक डिजायर है, एक ख्वाहिश है कि जो मैंने शुरू में कहा कि भी मैं अमीर आदमी बनूं, मेरा अच्छा कारोबार हो, ये सारी क्या है? ख्वाहिशें हैं। लेकिन जो जरूरत है उसका खुदावंद ने वादा किया कि वो पूरी करेगा। हमारी जरूरत जो है वो गुनाह नहीं करवाती, लेकिन जो ख्वाहिश है जब वो हामला होकर, ऑफ कोर्स एक ख्वाहिश, दो ख्वाहिश, तीन ख्वाहिश, चार ख्वाहिश, और फिर अंबार लग जाता है कि भी अभी पूरा हो। कभी पैसा पूरा हुआ है मेरे पास? कभी भी नहीं। हमें पैसे की ख्वाहिश है कि बहुत हो जाए, तो कभी पूरा ही नहीं हुआ, है ना। ये ख्वाहिश है और इसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं। अगर मेरी रोटी की जरूरत हो तो वो तो पूरी हो जाती है ना। लेकिन मेरी ख्वाहिश तो और ज्यादा है कि मैं आज 3000 कमा लूं, 5000 कमा लूं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ पूरी नहीं पैंदी।
10,000 की ख्वाहिश हो जाती। ये है ख्वाहिश और ज़रूरत में डिफरेंस। ख्वाहिशें जो हैं वो हमें गुनाह में मुब्तला करती हैं कि भी एदा भी मार लवा, एदा भी मार लवा, इधरों भी फाड़ ला, मेरे हाल बहुत आज। हमेशा हम में से हर एक की ये कोशिश है कि मेरे पास इससे ज्यादा हो। स्ट्रगल करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, रेस्ट नहीं है। सुबह से निकलते हैं, रात को वापस आते हैं, फोन करते हैं, आ जाओ आ जाओ, आ जाना, ठहर जो आखिरी रह गई, पूरी नहीं पड़ती है ना। और अगर जरूरत को देखा जाए तो वो तो $50 का खाना लेके पूरी फैमिली भी खा सकती है ना। खाना ही अगर खाना हो, $29 का पैकेट आता है, 5 का पैकेट, जिसमें वो कोरियन नूडल्स होती हैं, नूडल्स हैं, वो एक एक पैकेट भी इंसान खा ले तो इतना महंगा नहीं है, $5-6 $7 का एक पैकेट बनता है, तो आदमी पेट भर लेता है उससे, है ना। लेकिन ख्वाहिश क्या है, मैं म्यार दे हो गई, लोकी की सोचन की, है ना। हम ख्याल करते हैं कि यारो कहेंगे हूँ आज जो हो गया। हमें ख्वाहिश जो है हमारी, वो हमें गुनाह की तरफ मायल करती है। और अय्यूब ने क्या किया, खुदा ने दिया, उसने ये स्ट्रगल नहीं, यार ऐसे जो घाटा पै गया तो दया कर ली है ना, कि हार नहीं मननी। उन्होंने क्या, कोई गल नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं खुदा के खिलाफ कंप्लेन नहीं करूंगा, खुदा के खिलाफ खुदा की तहकीर नहीं करूंगा कि भी आज तो मैंने इन्ना सारा दिता सो है कि हुण इन्ना भी नहीं कर सकता, मेरे इन्ना को तो बचा ले, है ना। उसने खुदा के खिलाफ कोई बात नहीं कही और उसकी शुक्रगुजारी की। उसी ने दिया और उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। उसने ये नहीं की कोशिश की कि भाई तू थोड़ा बहुत बच जाता, खुदावंद है इन्ने को डंगर ते है सन, तू सारे ले लेन, सारा उसका खत्म हो गया। और फिर पोजीशन ऐसी हो गई कि भाई हेल्थ भी खराब हो गई। लिखा है कि ठीकरे से खुजली जो है वो बड़ी खुजली, कभी आपको खुजली हुई? हाँ जी हुई? हाँ जी। एक्सपीरियंस है कि भी अगर हो तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा लत ही जावे, है ना, इतनी खुजली होती। मुझे जाती भी एक्सपीरियंस है, हम में से हर एक को, इंसान है ना, तो हम हर एक स्टेज में से गुजरते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। हमें इस बात का अंदाजा है कि जब उसको इस तरह की प्रॉब्लम बनी होगी तो किस तरह उसको तकलीफ होती होगी। और उसने फिर भी खुदावंद का गुनाह नहीं किया, खुदावंद के खिलाफ बात नहीं की। उसको कहा गया, इनकरेज किएगा तो गुनाह जो करेगा तो वो मरेगा। तो उसकी बीवी ने उसे सलाह दी कि भाई इस तरह कर ले तो खत्म हो, इससे तो जान छूटे। एक्चुअली उसकी बीवी उसको उस हालत में देख नहीं सकती थी और उसने उसको उकसाया कि भाई तू ये कर ले और खत्म हो जा, गुनाह कर और खत्म, तेरी जान छूट जाएगी इन अजियतों से। लेकिन उसने खुदा के खिलाफ गुनाह ना किया। हम जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, अगर हम गौर करें तो हर एक लफ्ज में हमारी रहनुमाई है। हमारी ख्वाहिशें जो हैं वो हमें गुनाह में मुब्तला करती हैं। और जब गुनाह लिखा है कि हामला, जब ख्वाहिश जब हामला होती है तो गुनाह पैदा करती है। जब हम उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं, तो फिर हम नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं देखते कि ये रास्ता सही, बस आ जावे, काम मेरा हो जाए, कोई भी रास्ता अपना लें। आज का जो कलाम है वो हमारी रहनुमाई इस तरीके से करता है कि हम ख्वाहिश ना करें बल्कि खुदावंद की शुक्रगुजारी में रहें कि अगर हम ख्वाहिश करेंगे तो एक खत्म नहीं होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम जो कुछ उसने हमें अता कर रखा है उसी पे किनायत करें तो हम खुदा के खिलाफ
गुनाह नहीं करेंगे। अगर कहते हैं कि किसी का मुंह लाल हो तो अपना मुंह थप्पड़ मार के लाल ना कर लें, है ना, कि जो जेन्युइन है उसको ऐसा ही रहने दें और उसकी शुक्रगुजारी करें। आज मेरी सुबह हमारे भाई जॉन से बात हो रही थी कि भी वो मिस करते हैं या याद करते हैं, मामा कहती हैं कि आ जाओ, वो कहते हैं हाँ वो तो कहते हैं, लेकिन उनकी जो रजामंदी इसमें है कि उनको भला लगता है यहाँ पे रहना, कुछ इंतजामात ऐसे हैं यहाँ पे कि इंसान की केयर हो रही है। ऑफ कोर्स ये एक उनकी ज़रूरत है, अब जिस पोजीशन में वो हैं तो उनको मेडिसिन की भी ज़रूरत है ना, तो वो ये समझते हैं कि उनका यहाँ रहना बेहतर है। ऑफ कोर्स हर एक आदमी अपने बारे में खूब जानता है और समझता है, तो जो ज़रूरत है अगर उसी पे हम कनायत कर लें तो हमें गुनाह का सामना नहीं करना पड़ेगा और खुदावंद की ये किस्म की शुक्रगुजारी होगी कि हम खुदावंद की सिताइश करते रहेंगे कि जो उसने वादे किए हैं वो अपने वादों को पूरा करने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि हमारी ये जो प्रॉब्लम बनी, क्या ये मेरी ज़रूरत थी या मेरी ख्वाहिश थी? अगर मैं जी ज़रूरत नहीं, ख्वाहिश है। ऑफ कोर्स जब हम उल्टे सीधे काम करते हैं तो हमें एक ना एक दिन सामना करना पड़ता है अपने किए का, और अगर हम किए पे पछताते हैं तो खुदावंद हमें माफ़ करने में कादिर है। अगर हम अपने किए पे पछताते हैं तो खुदावंद हमारी खताओं को माफ़ करने की कुदरत रखता है। आज का जो कलाम है वो ऑफ कोर्स लिखा है कि जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो ज़िंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। यानी खुदा से मोहब्बत जो है वो जब हम जाहिर करते हैं तो फिर हम उसके खिलाफ गुनाह नहीं करते। मेरे अजीजों, खुदा से मोहब्बत ऐसी है कि हम हर एक तरीके से उसकी ताज़ीम करते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। मेरे दोस्तों, लिखा है कि खुदा ना किसी को बदी से आजमाता है और ना, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। अब लिखा है कि भी शैतान ने उसको आजमाया, खुदा ने नहीं आजमाया, है ना, खुदा ने नहीं आजमाया। अय्यूब को खुदा ने नहीं आजमाया कि उसको पता था कि ये कौन है, उसको पता है कि मैं कौन हूं, उसको हमें से हर एक का पता है कि उसने हमें किस लिए बनाया है, और खुदा अपने कामों को पूरा करने की कुदरत रखता है। उसने छोड़ दिया कि भी ठीक है भी अजमाल है, उन्होंने कहा भी आ जरा सारा कुछ तो दिता है नू, जो तेरे को वापस ले लेगा ना तो फिर वेखिए तेरे खिलाफ तहकीक। अब खुदा को पता था कि ये रास्तबाज शख्स है और ये मेरे खिलाफ गुनाह नहीं करेगा, तो खुदा ने जब उसकी आजमाइश पूरी हो गई तो क्या किया, उसको डबल दे दिया। खुदा ने उससे जो उसके पास था उससे ज्यादा दे दिया, बरकत दी। जो उसका हाल है वह पूरा मिलने के लिए आया था, शेयर करने में पता लगा भाई दादे बड़ी परेशानी हो गई, तो चल कोई गल नहीं, अल्लाह रख मतलब है उसको बाली और ऑफ कोर्स ब्लेस करके जाते थे कि जो वो गिफ्ट एक किस्म के सपोर्ट के लिए लोग जो आते थे तो पैसा की बने यार मुश्किल होगी, तो अच्छा चलो कोई काम नहीं, पैसा फिक्र ना करो, साढ़े लो है
बच्चा भी डांट। ये एक तरीका होता है एक दूसरे को इनकरेज करने का। तो लोग जो उसका हाल दरियाफ्त करने के लिए आते थे वो उसकी सपोर्ट करके जाते थे। तो इतने लोगों ने उसकी केयर की कि उसके पास उससे पहले से डबल हो गया। उसने खुदावंद की मोहब्बत में उसके खिलाफ गुनाह नहीं किया। तो जब हम आजमाइश की बर्दाश्त करते हैं तो खुदावंद से बरकत पाते हैं। हमें जो ज़रूरत है उसका तो खुदा ने इंतज़ाम कर रखा है। हम काम करें या ना करें, खुदावंद ऐसे ऐसे तरीक़ों से हमारी ज़रूरत को पूरा करता है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारी ख्वाहिश है उसको हम पूरा करने के लिए स्ट्रगल करते हैं और फिर वो हमें शर्मिंदा करती है। हमारी ख्वाहिश हमें शर्मिंदा करती है। क्यों? क्योंकि गुनाह की मजदूरी हमें नज़र आ रहा है कि इसका जो अंजाम है वो मौत है। गुनाह की मजदूरी जो है मौत है। हमारी जो ख्वाहिश है वो हमें खुदा से दूर लेके जाती है। अगर हम शुरू में देखें पैदाइश में तो फिर हमें आदम और हवा, खुदा ने उनकी ज़रूरतों के लिए बाग अदन बना दिया, उनको वहाँ रखा, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता था। वो फिक्र ही नहीं थी, कल की फिक्र ही नहीं थी, वो खाते पीते इंजॉय कर रहे थे। आदम आज के पास आया, तुहानू पता है कि ये दरख्त, हाँ जी ये दरख्त जे खादा तो खुदा ने मना किया, और नहीं गाली को नहीं, अब इना कोई काम है फड़ो तो खाओ। तो खुदा नू तो पता है तुहाडियां अखां खुल जानियां हैं, तुसीं नेकी बदी जान लोगे। अच्छा अरे खा लिया, जिस तरह बाइबल में स्टोरी लिखी है ना। तो डिजायर पूरी हो गई। अच्छा सानू तो पता ही नहीं सी, तुसीं दस्सण दे है ना, कोई गल नहीं, नो प्रॉब्लम, खाओ तो पता लग जाएगा तुहानू। अच्छा उसने तो खा लिया, फिर आदम को भी दिया, फिर दोनों की आंखें खुल गई, है ना। तो आंखें कैसे खुल गई? खुदा से दूरी हो गई। उन्हें पता चल गया हम तो नंगे हैं। हाँ वो तुहानू क्या पता लगा सानू इन्हें दिता है। अच्छा उन्होंने कोर्ट से हाजिर कर लिया, है ना, कि तीनों को कायना हाजिर कर। अच्छा भी सबको फिर सजा मिली। उनकी जो खिलाफ वर्जी थी, भाई इस दरख्त का फल ना खाना, ये ना खाना, एंजॉय करो बाकी सब। अब स्टोरी इस तरह है कि जब हम खुदा के खिलाफ गुनाह करते हैं तो हमें ज़हनी तौर पे कोफ्त होती है, शर्मिंदगी होती है, हम सामना नहीं कर पाते, है ना, सच्चाई का सामना नहीं कर पाते। हमारी ख्वाहिश जो है हमें शर्मिंदा करवाती है। क्यों? क्योंकि हम ख्वाहिश को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। दूसरा नेगेटिव पॉजिटिव नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हमारा ये गोल है, मैंने ये अचीव करना है। उसको अचीवमेंट के लिए हम स्ट्रगल करते हैं और लीगल और इलीगल वे इख्तियार करते हैं। हम उसकी परवाह ही नहीं करते कि वो हमें देख रहा है, जो हमारा बनाने वाला है उसकी तो हम परवाह ही नहीं करते। क्या खुदा को पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं? खुदा को पता था, वो तो हर वक्त मौजूद था वहां पे। बाग अदन में खुदा मौजूद था, वो हर वक्त वहां मौजूद था, लेकिन लेट इट गो, खुदा ने उसे होने दिया कि कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं ये खुद ही बर्दाश्त करेंगे, है ना। खुदा ने ये होने दिया। हमें भी खुदा ने बना दी है और उसे पता है कि ये कौन है। उसने हमें क्यों बनाया उसे पता है। आदम और हवा को खुदा ने बनाया और फिर उसने उन्हें बाग अदन में रखा और उनकी ज़रूरतों के मुताबिक उनकी ऑफ कोर्स केयर हो रही थी। लेकिन ख्वाहिश पैदा हुई और ख्वाहिश ने जन्म लिया गुनाह को, खुदा की नाफरमानी हो गई, है ना।
नाफरमानी हुई तो खुदावंद से दूरी हो गई। ये है आज का पैगाम कि अगर हम खुदावंद की हुजूरी में रहें तो वो ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन अगर हम खुदावंद से दूर हो जाते हैं और अपनी स्ट्रगल में शुरू हो जाते हैं तो फिर हम खुदा के खिलाफ गुनाह करते हैं और फिर ऑफ कोर्स हम उसका अजर पाते हैं और नदामत उठाते हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहूँगा कि खुदावंद ने बरकत दी और फिर ऑफ कोर्स एक मेरा इम्तहान था जिसमें मैं फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? मेरी फैमिली थी, मेरे बच्चे थे और मुझे ये फिक्र हुई कि भी कल को किराया कौन देगा। ये पता नहीं चला कि किराए का तो खुदा ने इंतजाम कर देना है। क्यों? क्योंकि उसने वादा किया है और अगर मैं उसकी कुर्बत में रहूंगा तो वो मुहैया करेगा। मुझे ये फिक्र हुई कि भाई कैसे किराया होगा, इनकी ज़रूरतें कैसे पूरी हों। मैंने स्ट्रगल की, भागदौड़ करके कंपनी रजिस्टर करवाई। बेटे ने कहा जी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैंने उनकी उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये सिस्टम शुरू किया और फिर स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, है ना। दोस्त कहते हैं कि भाई इज्जत से तो डब्बे चुकता है ना, मजदूरी कर रहे हैं। वो ही ठीक था यार। हम लोग अपनी ख्वाहिश में मुब्तला होके खुदा के खिलाफ गुनाह करते हैं, यानी खुदा की नाफरमानी करते हैं। प्रिजन में जाते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, खिदमत करते हैं, फ्री टाइम है, एंजॉय हो रहा है, कमी भी नहीं है ना। लेकिन जब से अपनी स्ट्रगल शुरू हुई तो फिर कभी पूरी नहीं पड़ती। ये है फर्क खुदावंद की ताबेदारी का और खुदावंद से मुकाबला करने का। खुदावंद कह रहा है कि इस तरफ चलो, हम लोग इस तरफ चल रहे और स्ट्रगल हो रही है। खुदावंद के पीछे चलना, गीत हम गाते हैं, पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। उसमें डर ही नहीं है। लेकिन जो अपनी स्ट्रगल है, उसमें डर भी है, फिक्र करते हैं प्रॉब्लम ना हो जाए यार, चलो रिस्क लेते हैं, है ना। हम रिस्क लेते हैं, लेकिन खुदा के काम में रिस्क है ही नहीं। दुनियादारी के काम जो हैं उनमें नुकसान चांसेस हैं, लेकिन खुदावंद के काम में कभी नुकसान है ही नहीं, कभी नुकसान नहीं है, बल्कि बरकत है। लिखा है हर अच्छी नेमत ऊपर से है, जिसमें कभी खुसारा हो ही नहीं सकता। लिखा है ना, इसमें है लिखा हुआ, हाँ लिखा है कि हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें कोई तब्दीली होती है। क्या है? तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से। सिस्टम जैसे भी चले भाई, और 2004 आ गया, 2008 आ गया, ओ हो रिसेशन आ गया जी, दुनिया में जो है कमी हो गई, भाग दौड़ मच गई, नुकसान हो रहे हैं, कंपनियां बंद हो गई। ये गर्दिश है सिस्टम में, ये चल रहे हैं। जब हम इसमें रहते हैं तो गर्दिश यानी सिस्टम आज ऊपर जा रहा है, कल नीचे आ गया, मार्केट डाउन हो गई, ये है सिस्टम, ये गर्दिश हो रही है ना। और एक पॉइंट ऐसा आ गया कि सारा नुकसान हो गया, बड़े बड़ी कंपनियां बंद हो जाती। एक सिस्टम अभी हम गुजरे हैं रिसेंटली, कोविड। देख, कभी आपको इत्तेफाक हुआ एयरपोर्ट पे जाने का उस वक्त, उन दिनों में? अभी तो सिस्टम फिर शुरू हो गया, तो हवाई जहाज चलना शुरू, हमने देखा, फोटोएं खींची हैं, कतारों में जहाज खड़े हैं, वो तक जहाज। क्यों? सिस्टम की वजह से जहाज टेक ऑफ नहीं कर रहे कि किधर जाएं, सब तो बॉर्डर बंद है, लोगों का आना जाना बंद है। हमने देखा कि ये सिस्टम है गर्दिश, कि जहाज पहले कम ऑफ कोर्स आते थे जहाज, लेकिन टेक ऑफ करते थे, रुकते नहीं थे ज्यादा देर। लेकिन उस वक्त हम आज गए हैं तो आज भी जहाज उधर ही खड़े हैं, 15 दिनों के बाद गए हैं तो अब भी उधर ही खड़े हैं।
क्यों? क्योंकि टेक ऑफ नहीं कर रहे प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि जो ज़रूरतें थी वो पूरी हो रही थी। लेकिन जब हम खुदावंद की नेमतों को निगलेक्ट करते हैं और उससे ज़्यादा की ख्वाहिश करते हैं तो फिर हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, अगर हम खुदावंद की दी हुई नेमतों और बरकतों को एंजॉय करना चाहते हैं तो शुक्रगुजारी करें। खुदा की नेमतों को, बरकतों को एंजॉय करना चाहते हैं तो उसकी शुक्रगुजारी करें। और अगर हम ख्वाहिश को पूरा करेंगे तो फिर हम गुनाह करते हैं और खुदावंद का मुकाबला करते हैं। खुदा कह रहा है कि सीधे चलें, हम कहते हैं कि नहीं, सीधे मुश्किल है, इस तरफ से होके जाते हैं, ये शॉर्टकट है, और फिर आगे मुश्किल आ जाती है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, अगर हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें तो बहुत है, हम दूसरों के साथ बांटते हैं, है ना। लेकिन अगर ख्वाहिश करेंगे तो फिर अपनी भी पूरी नहीं पड़ती और दूसरों को भी देने का मन नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने को नहीं पूरा आया तो दूजे ने कितों देना है ना। ये है ख्वाहिश। ख्वाहिश क्या है और शुक्रगुजारी क्या है? शुक्रगुजारी में जो है दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं, लेकिन ख्वाहिश क्या है, उसमें अपनी भी पूरी नहीं पड़ती तो दूसरों को देने के काबिल भी नहीं होते। ये है ख्वाहिश। जरूरी है कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। क्यों? क्योंकि खुदा ने जो हमें बरकतें, नेमतें दे रखी हैं वो बहुत हैं, और अगर हम ख्वाहिश करेंगे तो वो कभी पूरी नहीं होंगी। जरूरी है कि हम उसके आगे झुकें और उसका शुक्र अदा करें। उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। हालात कैसे भी हों, खुदावंद की नाफरमानी ना करें, उसकी शुक्रगुजारी करें तो खुदा हमें बरकत देता है, सरफराजी बख्शता है। मगरूरों का मुकाबला करता है। मगरूरी क्या है? पूरी नहीं लेनी। शुक्रगुजारी क्या है? जो भी है उसका शुक्र अदा करें। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, खुदा हमें बरकत देना जानता है और उसे पता है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पिछले दिनों भाई अभी काम नहीं कर रहे, आप काम नहीं करते ना भाई जॉन जी, तो कोई चीज़ की कभी कमी होती है? नहीं होती। खुदा मुहैया करता है, उसने वादा किया है, हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा और वो अपने वादों को पूरा करने की कुदरत रखता है। खुदा हम सबको बरकत दे और अपने में बढ़ने का फजल अता करे। जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। हम सब अपने सरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएं और उसका शुक्र अदा करें। सगीर जी दुआ में हमारे नाम